Assalamualaikum and greetings everyone to PCHF's Awareness and Advocacy webinar series. Today we are honored to welcome retired Major General Professor Dr. Iftikhar Ahmed, Hilali Imtiaz Military, who is a consultant pediatric cardiac anesthesiologist and intensivist at Bahria International Hospital at Orchard. Previously, he has been the head of Pakistan Army's first venture at liver transplant in Military Hospital Rawalpindi and has served as an advisor in anesthesiology in Pakistan Army and has also remained the head of pediatric cardiac anesthesiology and ICU at AFIC and the National Institute of Heart Diseases. Major General retired Professor Dr. Iftikhar Ahmed's impeccable career has earned him not only a prestigious name, but the second highest award and honor by the government of Pakistan, the Hilali Imtiaz. He has also been awarded the Certificate of Excellence in 2005 by the Commandant of AFIC. Major General retired Professor Dr. Ahmed has received his training from acclaimed and international institutions such as the Royal Brompton Hospital, the International Children's Heart Foundation, and the University of Tennessee. He has been the head of Pakistan Army's first venture of liver transplant at Military Hospital. He has authored more than 30 papers and co-authored the Pediatric Cardiac Intensive Care Manual and Handbook for medical officers. He has also devised a specialized cardiac intensive care course for nurses, which has now been approved by the National University of Medical Sciences. Dr. Iftikhar has also participated in and organized more than 8 international conferences. Today, he will be talking about post-operative care, important considerations for the cardiac intensive care team and parents. Welcome, sir. Assalamu alaikum. Thank you very much, Sama, for the nice introduction, and thank you very much for the invitation. I'm really honored, and PCHF is doing a wonderful job, and they are helping the poor, and they are creating awareness among the people. Thank you very much once again. So I'll go to that topic right now. इसमें मैं जरा अपनी नेचुरल पाकिस्तानी लैंग्वेज पे स्टिक करूंगा ताकि पेरेंट्स भी सुन रहे हैं सबको ताकि इनको अच्छी तरह से चीजें समझ आए. थैंक यू सर. ये इंटेंसिव केयर है हमारी 5-bedded इंटेंसिव केयर इन बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑर्चिड. और ये हमने जो केसेस किए हैं इसमें एक छोटा बेबी नजर आ रहा है जिसका कोऑपरेशन एयोर्टा किया हमने 3 महीने की एज में और 3.5 किलो वजन था. इस तरह साइड पे ये हमारी टीम नजर आ रही है. एक और बच्चा है इसका हमने ग्लैंड्स ऑपरेशन किया. ये हमारी बाकी जो टीम है वो नजर आ रही है और आईसीयू नजर आ रही है. तो इस प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारा एम है कि एक तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक केयर ऑफ द कार्डिक सर्जरी पेशेंट के लिए, और सेकंड ये है कि उसकी अवेयरनेस हो और कुछ पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके बच्चों के साथ क्या होता है जब वो आईसीयू में जाते हैं. तो फिर जो है कि आईसीयू की टीम क्या होती है, वो कैसे काम करती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे. फिर आईसीयू में जो मॉनिटरिंग होती है उसका हमें क्या फायदा होता है, मॉनिटरिंग का, उससे क्या हम इन्वेसिव मॉनिटरिंग क्या है, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे केयर में क्या हेल्प होती है पेशेंट की. फिर नर्सिंग केयर, ये 1-to-1 रेशियो होती है नर्स की, उनका स्किल, उनका कम्युनिकेशन स्किल वो कैसी हो, तो उनका नॉलेज अपडेट रहना, तो कैसे वो हेल्प करती हैं इंटेंसिव केयर में. फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स जो हम उधर यूज करते हैं उससे क्या हेल्प मिलती है, कैसे हम डायग्नोज करते हैं, कैसे हम ट्रीट करते हैं चीज़ों को, और कैसे हम एंटिसिपेट करते हैं कि जी आईसीयू में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस ऑपरेशन में, और उसको कैसे फिर हम ट्रीट करते हैं. और फिर थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स बिटवीन द टीम मेंबर्स, टेक्निकली कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और फिर
थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि फैमिली काउंसलिंग, क्योंकि जिन माओं के बच्चों के ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो बड़ी वरीड होती हैं, और उनको एक तो बच्चे भी डिपेंडेंट होते हैं माओं पे, उनको किस तरह आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे आपने आईसीयू में आना है, किस तरह आपने स्टरलाइज तरीके से हैंडल करना है, और उनको काउंसलिंग रूम में लेके जाते हैं जब ग्रैंड राउंड के बाद, उनको बीमारी के मुतालिक बताते हैं, उनको पेशेंट की प्रोग्रेस के मुतालिक बताते हैं, ताकि वो अवेयर रहें हर लम्हे अपनी बच्चों के बाद। मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक पेशेंट जो है, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होती है, और इसका आउटकम डिपेंड करता है by intercommunicating skills of the surgeon, anesthesiologist and cardiologist. ये तीनों मिलके सारे आपस में प्लान बनाते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्रूशियल चीज होती है जब बच्चा हमारे पास आईसीयू में आता है, उसका इंटरडिसिप्लिनरी साइन आउट, ये क्या चीज होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ये होता है कि एक तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम में होता कौन कौन है, इसमें जो है मेंबर जो होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड साइड नर्स होती है, 2 बेड साइड नर्सेज होती हैं, उनमें से एक पेशेंट का ख्याल रखती है और एक इसमें आ जाती है, ये जो सारी रिपोर्ट होती है इंटरडिसिप्लिनरी रिपोर्ट, आगे पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए जो प्लान हमने बनाना। इसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, इसमें कार्डियक सर्जन होता है, और इसमें इंटेंसिव केयर यूनिट के फिजिशियन होते हैं। इस रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें प्री ऑप डायग्नोसिस से लेके प्री ऑपरेटिव कंडीशन ऑफ द पेशेंट वो बता के, ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या हुआ और मेडिकेशन यूज हुई, फिर जाके पोस्ट ऑपरेटिव इमेजिंग जो कहते हैं और उसकी एनाटॉमी क्या है, और क्लोजिंग द लूप जो है कि उसको फिर एक बंदा समराइज करता है, और वो जो होती हैं उधर इसका पार्ट नर्स होती हैं, वो क्लैरिफाई करती हैं क्वेश्चन। ये इसमें एक प्लान बनाया जाता है कि इस पेशेंट के साथ फर्दर हम क्या करेंगे। तो ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। उसके बाद जब ये प्लान बन जाता है, तो फिर हम इंडिविजुअल केस के लिए, इंडिविजुअल केसेस के लिए क्या करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो हर जो पेशेंट पे इंडिविजुअली हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि उसकी सर्कुलेशन क्या है, उसका एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ डिजीज क्या हो सकता है, उसका यूनिक फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उस केस में, उसकी हम कैसे जो है कि लो कार्डिक आउटपुट, यानी कि उसकी कार्डिक आउटपुट वो डाउन जब जा रहा है तो कैसे रिकग्नाइज करते हैं एंड हाउ टू मैनेज इट, और इसमें कैसे हम एंटिसिपेट करते हैं कि जी इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और कैसे फिर इंटरेस्ट इनके स्किल की वजह से, स्पेशलिस्ट की स्किल की वजह से इसको हम प्रॉम्प्टली एक्ट करते हैं ताकि इनको अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ तक तो हो गया कि जी ये एक प्लान बन गया। उसके बाद हमने एक उसका इंडिविजुअल जो सारा जनरली हम जिस तरह एक्ट करते हैं उसके एक असूल, जनरल असूल बना दिए। उसके बाद ये होता है कि हम पेशेंट को असेस करते हैं। उसमें ये होता है कि एक पेशेंट जो होती है उसको बेसलाइन मॉनिटरिंग लगा के उसको देख रही होती है पेशेंट को, और बाकी उसमें क्या कैसे असेसमेंट शुरू करते हैं और मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। पहले बेसलाइन मॉनिटरिंग लगा देते हैं, फिर जो होते हैं कि जी हम डाटा को इंश्योर करते हैं, हम वाइटल साइंस को देखते हैं, वाइटल साइंस के ट्रेंड्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि इन्वेसिव मॉनिटरिंग क्या हो रही है, क्या इन्वेसिव मॉनिटरिंग के प्रेशर क्या आ रहे हैं, वेव फॉर्म क्या आ रही हैं, उनको ब्लड में कैथेटर में रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको कैलिब्रेट्स करते हैं, जीरोइंग करते हैं ताकि उनकी रीडिंग ठीक है, ताकि उनसे हम जो है आगे फायदा उठा सकें। ठीक है, हम चेस्ट रेडियोग्राफ करते हैं जिसमें आपको लाइंस की पोजीशन वगैरह नजर आती है कि अपनी जगह पे सही पोजीशन पे लाइन है, जिस तरह एक्सरे में नजर आता है। हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी पैदा होता है कि उसमें आपको ईसीजी में कोई अबनॉर्मैलिटी या उसमें रेट रिदम वगैरह देखते हैं। ये है कि पेशेंट का, क्योंकि अगर एवी सिंक्रोनी ना हो अगर, तो उसमें क्या होता है कि जो किक मिलती है, एट्रियल किक मिलती है कार्डिक आउटपुट में 30%, वो नहीं होती और कार्डिक आउटपुट लो हो जाती है। तो इन सब चीजों को आपने टाइमली मैनेज करना होता है। फिर ये होता है कि ये सारा काम 1 घंटे में, जब पेशेंट आ जाता है तो 1 घंटे में करते हैं। फिर उसमें ये देखते हैं कि लेबोरेटरी ब्लड एनालिसिस हमने जो इनिशिएट जो करना होता है, उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड गैसेस कर लेते हैं। उसमें जो है लैक्टिक एसिड देखते हैं, सीरम लैक्टेट लेवल्स देखते हैं उसमें, और उनका ट्रेंड देखते हैं जी कैसे किस तरह चेंज हो रहा है। फिर उसमें हम सीबीसी कर लेते हैं। उसमें ये हम ये
है कि कोगुलेशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बाद में कॉम्प्लिकेशन जो ब्लीडिंग रहा उसके लिए करना हो। तो ये सारी चीजें करके फिर हम थोड़ा सा हम आते हैं कि इन्वेसिव हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग क्या होती है और उससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और ये कैसे जो है हमें हेल्प कर सकती हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर ये लगा होता है, इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये इन्वेसिव मॉनिटरिंग में आता है। फिर कुछ कैथेटर डाले जाते हैं, जिस तरह के राइट एट्रियल कैथेटर डाल देते हैं एट्रियल अपेंडेज से, या लेफ्ट एट्रियल, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन से वो डालते हैं एलए। इस तरह पीए कैथेटर आरवीओटी के रूट से जाके पीए में जाता है, वो डालते हैं। इनसे इंफॉर्मेशन है, इनकी नॉर्मल वैल्यू पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये जिस तरह आरए जो है उसकी वैल्यू है 6 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इस तरह एलए की जो है 12-14 से कम होनी चाहिए, आरए से थोड़ा ज्यादा होती है। इस तरह पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो अबाउट 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक मीन होता है। नॉर्मल वैल्यू आपको पता होती है, जब ये बढ़ती हैं चेंज होती हैं तो उसी तरह उसको आप साथ साथ मैनेज करते रहते हैं। तो ये इसमें आप रेडियोग्राफ में देख रहे हैं कि सारी ये लाइनें जो हैं कि किस तरह के, ये जो लेफ्ट रेड लाइन से नजर आ रही है वो एलए लाइन है, जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ये आरए लाइन है, और जो पल्मोनरी आर्टरी की है वो ग्रीन नजर आ रही है। ये दिखाया जा रहा है कि इनकी पोजीशन किधर से आ रही है, और ये जब स्टर्नम से, लोअर स्टर्नम से नीचे निकलती है तो इनकी इसी तरह आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है पहले होती है एलए लाइन होती है, फिर आरए लाइन होती है और पीए लाइन होती है, कि आपको रिकॉग्नाइज करने में आसानी रहे, पता रहे कि ये क्या। राइट एट्रियम की जो है इसमें से जो कैथेटर होता है इसमें से क्या हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन जरूरी होती है मैनेजमेंट के लिए। राइट एट्रियल कैथेटर से हमें सिस्टेमिक वीनस रिटर्न का पता चलता है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम का पता चलता है, राइट हार्ट के इश्यूज पता चलते हैं, और इसमें अगर सेचुरेशन इंक्रीज हो जाए, इनकी नॉर्मल सिचुएशन जो होती है अबाउट 72 to 75% होती है, अगर इंक्रीज हो जाए तो हमें पता चलता है कि क्या पेशेंट में हाई कार्डियक आउटपुट है, क्योंकि उसको टिश्यू को टाइम कम मिल रहा है इसको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने का, वो बॉडी में गर्दिश कर रही है। इस तरह लेफ्ट टू राइट शंट जो है वो इसको बढ़ा सकते हैं। या ओवरवेलमिंग सेप्सिस है, अगर इट्स मोर देन 80 तो हम खुश नहीं होते, बल्कि हम इस पे वरीड हो जाते हैं कि इसमें जो है कि सेप्सिस का एलिमेंट है। और ये जब डिक्रीज होती है तो ये बता देती है व्हेन इट इज लोअर देन 70 या 65, तो ये बताती है कि ये लो कार्डियक आउट में पेशेंट जा रहा है। तो आपने अपनी स्पोर्ट्स को, कार्डियक सपोर्ट को आपने उसी तरीके से मैनेज करना। जो एलए लाइन होती है, एलए कैथेटर जो होता है ये बताता है पल्मोनरी वीनस रिटर्न को, इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम को बताता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्री लोड, आफ्टर लोड फंक्शन एंड इंटरकार्डियक शंटिंग की इंफॉर्मेशन देता है। और इसकी सेचुरेशन जो है 100% होती है। डिक्रीज सेचुरेशन जो है राइट टू लेफ्ट शंट को जाहिर करती है, और यहाँ ये है कि पल्मोनरी वीनस डिसेचुरेशन है जिसकी वजह से। पीए लाइन, पीए कैथेटर जो होता है ये अमूमन हम लोग जो आजकल यूज कर रहे हैं, ये हम इंटरनल जुगुलर वेन से डालते हैं और आगे इसको मैनेज कर देते हैं सर्जन पीए में। नॉर्मली पहले इसको ट्रांसथोरेसिक डाला जाता था, फिर उसको निकालते थे तो ब्लीडिंग वगैरह के इश्यू होते थे और टेम्पोनाट वगैरह हो जाता था, तो इसको मॉडिफाई किया, इस पर स्टडीज हुई और हमने ये इसको इस तरह चेंज। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो है वो राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन को बताता है, obstruction of the right ventricular outflow को बताता है, pulmonary vascular reactivity को बताता है, venous pressure in the lungs बताता है, and left sided heart filling pressure बताता है। और इसकी जब decreased saturation होती है, it means patient is in low cardiac output, और इसकी जब increased saturation होती है, it means there is a left to right shunt। ये इंफॉर्मेशन से हम इन चीजों को मैनेज करते हैं। अब बातें हम कॉमनली के पेशेंट आईसीयू में है और वो अमूमन जो है कि जब क्रिटिकल पेशेंट होते हैं शॉक में जाते हैं, तो व्हाट इज शॉक? तो शॉक जो है बेसिकली एनर्जी मिसमैच है। ये डिक्रीज सप्लाई टू द टिश्यू एंड इंक्रीज डिमांड, ये जो मिसमैच होता है ये इसको शॉक में ले जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, दैट रिजल्ट इनटू इम्पेयर्ड सेल फंक्शन एंड इनएरोबिक मेटाबॉलिज्म।
तो इसमें ये होता है कि जी इसमें हमें सप्लाई बढ़ानी होती है और डिमांड को कम करना होता है। O2 कंजम्पशन जो होती है ये कि रिड्यूस डिमांड, अब डिमांड उसकी रिड्यूस करनी है अपने शॉक को खत्म करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन जब करते हैं तो 40% ऑफ द कार्डिक आउटपुट टू मसल ऑफ रेस्पिरेशन विद वर्क ऑफ ब्रीदिंग जब ज्यादा हो जाता है तो उसमें जो जा रही होती है वो सेव हो जाती है। इस तरह सेडेशन एंड पैरालिसिस से ये डिमांड रिड्यूस हो जाती है। फिर ये है कि फीवर है पेशेंट, उसके फीवर को आप प्रिवेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो जो है उसकी डिमांड को कम कर सकता है। अब डिलीवरी हम कैसे करते हैं ऑक्सीजन, ये डिपेंड करती है फ्लो पे और ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। फ्लो कैसे होती है, कार्डिक आउटपुट से होती है। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में हीमोग्लोबिन होती है, सैचुरेशन होती है, और इसमें ये होता है कि डिजॉल्व्ड PO2 होती है। तो ये सारी चीज देख के हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करें तो इसके कंटेंट बढ़ जाते हैं तो ये सप्लाई बढ़ जाएगी और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएंगे। तो कार्डिक आउटपुट क्या है, ये डिपेंड करती है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट किस पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट को क्या देखते हैं कि हार्ट रेट की रेट उसका बढ़ाना, उसका रिदम को ठीक करना, सिंक्रोनाइज हो, ताकि जो एट्रियल किक का फायदा उठाते रहें। और स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है प्री लोड, कंट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड। प्री लोड बढ़ाएंगे, उसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे, आफ्टर लोड रिड्यूस करेंगे, तो वो जो है सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सारा करके आपको फिर देखना होता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कार्डिक आउटपुट के एंड ऑर्गन परफ्यूम। एंड ऑर्गन परफ्यूम इससे मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ये अर्ली इंडिकेटर होता है इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी का। और आर्टीरियल वीनस ऑक्सीजन ग्रेडियंट जो होता है वो जब मोर देन 30% हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो है एंड ऑर्गन परफ्यूम कम हो रही है। तो साइंस ऑफ इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूम जो है वो सीरम लैक्टेट लेवल इंक्लूडिंग द रेट ऑफ राइज ऑफ द सीरम लैक्टेट लेवल से होता है। एसिड बेस बैलेंस से आप देख सकते हैं। एंड ऑर्गन परफ्यूम वो कैसे पता चलेगी कि किडनी में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, सेरिब्रल अगर कम होगी तो पेशेंट ग्रॉगी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। मिक्स वीनस सैचुरेशन जो है ये मेजर है इन PA में मेजर की जाती है या सुपीरियर वेना केवा में किया जाता है, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा में भी इसका इतना डिफरेंस नहीं होता है और इजीली वो लाइन BA लाइन अमून नहीं डली होती, तो हम उससे कर सकते हैं 5% का अमून एट द मोस्ट डिफरेंस आता है। तो ये जब अर्ली इंडिकेटर ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीडेशन डिलीवरी का, जब डिक्रीज होगी, जब लो कार्डिक आउटपुट होगी, तो इससे जो है कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लो कार्डिक आउटपुट में सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, टिश्यू को टाइम ज्यादा मिल जाता है और वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लो हो जाती है। फीवर में कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और डिक्रीज अगर सैचुरेशन है तो उसमें एल्वेलो वीनस डिफरेंस जो है उसमें डिफरेंस ज्यादा मोर देन 30% हो जाता है। कैथेटर पोजीशन अगर ऐसी है जैसे कॉर्नरी साइनस वगैरह के साथ पढ़ो तो उससे भी ये काम हो सकता है। और इंक्रीज कैसी होती है कि डिक्रीज ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन वो कब होती है कि जब टिश्यू सर्कुलेशन अच्छी होती है, प्रॉपर होती है, उसको टाइम मिल जाता है और वो टिश्यू जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करता है, और ये लेफ्ट राइट शंट में बढ़ जाती है या कैथेटर पोजीशन की वजह से। ये हो गया कि हमने मॉनिटरिंग जो की और उससे हमने जो इंफॉर्मेशन ली, हम उन इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके तो उसकी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये फर्स्ट आवर्स में सारा कुछ ये प्रोसीजर चल रहा होता है जब हमारे पास पेशेंट आ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है कि कार्डियक पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, उसमें कार्डियक आउटपुट फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे आप कर सकते हैं। पेरिफेरल परफ्यूजन देखते हैं एंड टेम्परेचर देखते हैं, इस तरह कैपिलरी रीफिल वगैरह देखते हैं। इस तरह यूरिन आउटपुट से पता चल जाता है हार्ट साउंड्स, रिदमियाज, नॉर्मल रिदम है या रिदमियाज हैं, उससे ये सारी चीजें इससे आपको आइडिया हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप उसकी ब्रेथ साउंड देखते हैं, आप राइज ऑफ चेस्ट देखते हैं, आप उसकी देखते हैं वेंटिलेशन वगैरह ठीक आ रही है। आर्टीरियल ब्लड गैस से आपको ये पता चल जाता है कि ये कोई मेटाबॉलिक एलिमेंट है या रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, उसको
इसी तरह न्यूरोलॉजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कार्डियक पल्मोनरी बाईपास में पेशेंट होता है तो माइक्रो एम्बोलाई वगैरह ऊपर जाके तो उसको न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें जरूरी होता है कि आप पीपल का रिस्पांस, उसका साइज अर्ली आप उसको देखते रहें और उसको डॉक्यूमेंट करते रहें। इसी तरह लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका भी जरूरी है कि आप देखते रहें कि डिटोरिएट हो रहा है, ठीक है, कैसे। फिर बच्चों में पेन का बताना डिफिकल्ट होता है, वो आपको स्पेशल पेन स्केल से उनसे देखते हैं। और एक चीज ये होती है कि अगर पेशेंट सेडेटेड है और उसके वाइटल साइंस से आपको पता चल जा सकता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, इसका मतलब है उसको पेन हो रहा है। और बंदा यूज करके डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट पेन स्केल्स है, उसको देख के उसे भी असेस कर सकता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आप देखें अब्डोमिनल गर्थ देखते हैं, वो आप अम्बिलिकल के ऊपर से मेजर करते हैं और डेली देखते हैं उसको कि कोई एसाइटीज या वो तो नहीं बन रही, ज्यादा बढ़ तो नहीं रही। आप उसके बाउल साउंड देखते हैं, आप उसकी लिवर की असेसमेंट करते हैं कि लिवर बड़ा तो नहीं है, कंजेस्टेड तो नहीं है, आरवी फेलियर में तो पेशेंट नहीं जा रहा। तो ये सारा एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है। रीनल में आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह से देख सकते हैं। और फ्लूइड का आपको याद रखना होगा कि जब बाईपास के बाद फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में अमूल होती है, इनको हम जो फ्लूइड देते हैं वो हाफ मेंटेनेंस देते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं कि 1 ml पर केजी पर आवर देते हैं। फिर आप देखते हैं इनकी स्किन की इंटेग्रिटी, कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं इन्फेंट, इनकी ऑक्सीपुट ये अमूमन ऐसा पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट है, और अगर लो कार्डिक आउटपुट में हो, उसको न्यूट्रिशन कम जा रही हो, उनकी स्किन का ब्रेक होने का खतरा होता है। और अगर ये पेशेंट जो है ओल्डर पेशेंट है तो इनके सैक्रम पे इसी तरह प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हो सकता है। इसके लिए इनको पेशेंट को टू आवर्ली जो है इनकी पोजीशन भी चेंज करनी चाहिए। ये सारा हमने देख लिया कि जी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, उसको कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन से हम कैसे असेस कर सकते हैं पेशेंट किस साइड पे जा रहा है। क्योंकि आईसीयू में ना ट्रेंड देखने होते हैं कि पेशेंट का ट्रेंड की बेहतरी की तरफ जा रहा है या डाउन जा रहा है, उसको हमने कैसे जो है ट्रीट करना है, उसको ठीक ट्रेंड की तरफ ले जाना। चूंकि हमारा ज्यादा जो होता है उसमें कार्डियक पेशेंट है और मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह भी होती है, इनका इंटरेक्शन भी देखना जरूरी होता है कि इनके क्या इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से हम उसको अवॉइड करके और उस पर बैड इफेक्ट है अवॉइड करके तो फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह में स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में प्रीलोड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो बढ़ता है प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम द सिस्टमिक वेन्स टू द राइट एट्रियम एंड द आरवी फिल पैसिवली। तो ये इसका जब इंस्पायर करते हैं तो ये इसकी वजह से इसको ग्रेडियंट कम होता है और इनका जो है अच्छा प्रीलोड इसका हो जाता है। ठीक है, इंस्पिरेशन में जो है नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द राइट एट्रियम, मोर वॉल्यूम एंटर्स द आरए आरवी एंड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन प्रीलोड बढ़ जाता है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे है, उसका क्या इफेक्ट होगा, इंटरथोरेसिक प्रेशर is transmitted to the RA, decreased pressure gradient from systemic vein, so less volume enters the RA RV during the inspiration. इसमें इंस्पिरेशन में लेस वॉल्यूम होता है। और अगर आप प्रैक्टिकल भी है कि अगर आप पेशेंट को इंट्यूबेट करने का या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले इसका थोड़ा सा प्री लोड बढ़ा लें, तो उसके प्रेशर वगैरह ड्रॉप नहीं होंगे, ड्रॉप। फिर हम पेशेंट डील करते हैं, डिफरेंट पेशेंट डील करते हैं, जिस तरह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स है जिनमें ये है पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, इनमें पीए प्रेशर ज्यादा होते हैं। इसको आप जो वेंटिलेट कर रहे होते हैं क्या, तो आपको एक आइडिया लेना होता है कि कैसे करेंगे तो गुड आउटपुट होगी, आप किस तरह इसको करेंगे तो इसको डैमेज करेगा। इसमें जो आप सामने आपको नजर आ रही है डायग्राम में देखें, अगर फंक्शनल रेजिडेंट कैपेसिटी पे लो लंग वॉल्यूम पे इसको वेंटिलेट करें, इसकी ये पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होती है, इस पे अगर वेंटिलेट करें तो पेशेंट का पीवीआर जो है वो कम होता है और पेशेंट के लिए वो बेहतर रहता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम पे ओवर डिस्टेंट कर देंगे
उससे भी जो है पीवीआर बढ़ जाता है, या कोलैप्स हो जाएगा, अंडर डिस्टेंड होंगे, ऑक्सीजन कम जाएगी, हाइपोक्सिक वेंटिलेशन होगी, तो उससे भी पीवीआर बढ़ जाता है। जब हम इनको मैनेज कर रहे होते हैं वेंटिलेटर पे, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, उससे उसका फायदा ये होता है कि आप लो P5 टू मैक्सिमम 7 तक रखेंगे तो पीवीआर बढ़ेगा नहीं और पेशेंट को डैमेज नहीं होगा, और उसको फिर वेंट से ऑफ करने में आपको आसानी होगी। अच्छा, फिर हम आते हैं कि कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस आईसीयू की होती हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। जिस तरह के देखा गया है कि एक्सटूबेशन फेलियर, ये तकरीबन 6% पेशेंट में एक्सटूबेशन फेलियर होती है। उसमें क्या काजेज हो सकते हैं? उसमें जो है कार्डिक काजेज भी हो सकते हैं, उसमें नॉर्मल जो वेंटिलेशन के काजेज हैं, सेडेशन और ड्रग्स के इफेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी काजेज भी हो सकते हैं। कार्डिक में क्या हो सकते हैं? अगर रेजिडुअल डिफेक्ट है, पेशेंट को आपने ऑपरेट किया और उसमें रेजिडुअल डिफेक्ट है, तो उससे भी फेलियर हो सकती है। वॉल्यूम प्रेशर लोड हो गया, कार्डियल डिसफंक्शन हो गया, इसकी वजह से भी फेलियर में हार्ट होगा, वो भी जो है कि फेलियर हो सकती है। लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन हुई, उसकी प्लूरल होंगी, हो गई, एटिलेक्टेसिस हो गया, एस्टाइटिस होगी, हेपेटोमेगाली होगी, रिस्ट्रिक्टिव चेस्ट वाल मूवमेंट इनसे हुई, और ये इसकी वजह से भी हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि बाज दफा जो है पर ऑपरेटिवली फ्रेनिक नर्व को इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम का वो साइड पैरालाइज हो जाता है, और अगर बायलेटरल पैरालाइज हो जाए या एक साइड का पैरालाइज हो जाए, तो ये भी फिर जो है एक्सटूबेशन की फेलियर का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरह अगर एयरवे पे आप देखें, सबग्लॉटिक एडिमा होता है, एक्सक्रीशन होती है, वोकल कॉर्ड इंजरीज हो सकती हैं, ब्रोंकियल कंप्रेशन और ट्रेक्यूमुलेशिया वगैरह, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेटाबॉलिक में मेल न्यूट्रिशन वगैरह और कंट्रक्चर अल्क्लोसिस, कि हम इनको डायूरीज कर रहे होते हैं, जिसकी वॉल्यूम कम होता है, उसकी वजह से कंट्रक्चर अल्क्लोसिस हो जाता है, वो भी इसको इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सेडेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनकी डिप्रेशन काजेज वगैरह, वो भी सारे हेल्प कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ज्यादा देखी जाती है हमारी आईसीयू में, वो है हीमोस्टेसिस, सर्जिकल वर्सेस नॉन सर्जिकल ब्लीडिंग। कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पहले हमने डिसाइड करना होता है कि वेदर इट इज सर्जिकल ब्लीडिंग, आपको दोबारा उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, या उसको कैद से कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, या उसकी जो है कि उसकी नॉन सर्जिकल है, तो आपको कोगुलेशन स्टडीज करनी है, करेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल कोगुलेशन एंड हेमेटोलॉजिकल स्टडीज आपने करनी है। आपने उसको वॉल्यूम रिप्लेस करना है ताकि प्रीलोड वगैरह अच्छा रहे उसका। आपने उसकी जो है पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत सारे उसके स्विचेस होते हैं, सब कुछ, तो आपने जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी लो लेवल पे रखना होता है, बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना होता, नहीं तो उससे और जो है ब्लीडिंग बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि चेस्ट ट्यूब जो डली हुई है, इस पे आपने आपकी सही ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि सडन चेस्ट ट्यूब बहुत अच्छे उनमें ब्लड आ रहा है, बंद हो गई है, ये भी एक प्रॉब्लम जरूरी है। अगर वो पेटेंट है और चल रही हैं, तो फिर आपको वरी नहीं होना चाहिए, कम ब्लड बाहर आ रहा है और आप मैनेज कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग जो है, इट कुड बी इनएडुकेट हीमोस्टेसिस, सर्जिकल ब्लीडिंग। आपने हीमोस्टेसिस की बहुत सारे फीचर थे, कहीं आप उसको नहीं कर सके, जिसकी वजह से रेजिडुअल हेपरिन है, उसका इफेक्ट है, कोगुलोपैथीज हैं, डीआईसी है, उसमें प्लेटलेट जो हैं काउंट तो पूरा है, लेकिन डिसफंक्शनल प्लेटलेट बाद होते हैं, जिस तरह हम टॉफ वगैरह हाई हेमेटोक्रेट वाले पेशेंट जो होते हैं उनको देखते हैं, उनकी जो है बाद में ये ब्लीडिंग के इश्यूज आते हैं। फिर जो है कि लो टेम्परेचर हाइपोथर्मिया जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो देते हैं इनको ट्रीट करने के लिए, जो भी अगर आपको हो, और इनको ट्रांजामीन वगैरह वो दे सकते हैं, आप फैक्टर 7 दे सकते हैं, और अगर जिन चीजों से ठीक नहीं होता तो फिर उनको सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक टैम्पोनार्ड, जिसको रिकॉग्नाइज करना और अर्ली उसको मैनेज करना, ये बहुत ही जरूरी होता है। देखिए साइन सिम्टम क्या होते हैं कि
सडन जो है उसकी ड्रेनेज जो है जो बड़ी हुई थी वो डिक्रीज हो जाती है चेस्ट ट्यूब में, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, उसका इंट्राकार्डिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाते हैं, उसके राइट एट्रियल और एलए के प्रेशर बढ़ जाते हैं एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं कि पेशेंट के साथ ये हो रहा है एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर और नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है, ये लेट साइन होता है। तो ये जब आप देखते हैं इसको तो आपको इस पे जरूर कंसंट्रेट करना चाहिए कि जी ये कहीं कार्डियक कंपोनेंट तो नहीं है, वो एक इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए फौरन उसकी चेस्ट को ओपन करना पड़ता है ताकि वो ब्लड निकले और फिर वो ठीक हो जाए। फिर हम आते हैं कि मायोकार्डियल डिसफंक्शन इन इन्फेंट स्वॉलिंग, स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है जिस तरह आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन करते हैं, ये बहुत ही मतलब है हॉलमार्क होता है यूनिट का कि आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन जो है बड़े अच्छे कामयाब हो रहे हैं और कर रहे हैं। उसके लिए बड़ा केयरफुल होना होता है, तो उन पर स्टडीज की गई हैं और उसमें ये देखा गया है कि इनका जो है कि पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक इंडेक्स जो है, ये एवरेज डिक्रीज इन कार्डियक इंडेक्स इज 33% फ्रॉम द बेस लाइन, 33% उनका बेस लाइन हो जाता है। और उन्होंने ये भी देखा है कि ये ज्यादातर कुछ आवर्स हैं, जिस तरह 8 to 9 आवर्स के बाद आप देखें तो आपको सपोर्ट जो है वो अच्छी रखनी पड़ती है क्योंकि ये कार्डियक इंडेक्स जो है वो कम होता है। इस तरह फर्स्ट नाइट 24 आवर्स तक ये और भी कम रहता है बाद दफा, और 25% ऑफ न्यू बार्न में ये लेस देन 2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि जिसमें मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती है। तो इन चीजों को ज़हन में रख के फिर इस पे जो है कि वो स्पोर्ट्स वगैरह जिस तरह हमारी मिलिनाम है, हमारी एपिनेफ्रीन है, डोपामिन, जो भी स्पोर्ट्स चल रही है उनको इस हिसाब से मैनेज करके रखें तो आउटकम जो है वो बेहतर होता है। ये उसी का ग्राफ दिखाया गया है, किधर के पीवीआर एसवीआर किधर बढ़ जाते हैं इन आवर्स में और किधर ये डाउन हो जाते हैं और इनको मैनेज करना। एक और चीज है कि जो लेट आर्टियल स्विचेस होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है जिनमें वीएसडी होती है, हमको लेट कर देते हैं, लेट एज में कर देते हैं, 3 मंथ 4 मंथ में भी किए हैं जो है, तो हाई रिस्क होते हैं और उनमें ये होता है कि उनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है और स्पेशली ऑन द थर्ड डे 48 आवर्स के बाद वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ती है। वो पता कैसे चलता है कि आप देखते हैं कि पेशेंट है और उसके जो है कि राइट साइड की ईसीजी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, इंफीरियर जैसे इन्फार्क्ट होता है। इट मींस उसका पीए प्रेशर बढ़ा है, आरवी डिस्टेंशन हुई है। तो इसी तरह जिस तरह आर्टिकल स्विचेस में आपको एडवाइस करते हैं कि इनमें फॉरन फिलिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, 5 ml पर केजी से ज्यादा बोलस वगैरह नहीं देना चाहिए क्योंकि इनको आर्टरीज लगी होती हैं और जो है इनको जब डिस्टेंड करते हैं तो उन पे स्ट्रेच पड़ के इस्कीमिया हो सकती है। लो कार्डियक आउटपुट की एटियोलॉजी क्या हो सकती है? पोस्ट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, उसकी वजह से हो सकती है। आप उसमें क्रॉस क्लैम्प करते हैं, क्रॉस क्लैम्पिंग टाइम अगर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उस इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से होती है, जब आप रीपरफ्यूज करते हैं और उसके बाद भी कार्डियक आउटपुट में जा सकता है। इसमें आप जो कार्डियोप्लीजिया देते हैं उसकी वजह से इनएडिक्वेट मायोकार्डियल प्रोटेक्शन होती है कि टाइमिंग आप ठीक नहीं रखते या बना हुआ ठीक नहीं है या आपने थोड़ा सा टाइम प्रोलॉन्ग कर लिया कि ऑपरेशन खत्म होने वाला है, चलो इसको हम इसी को चला लेते हैं सारा, तो ये भी इस पे इफेक्ट करता है। अल्टरेशंस इन पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इनकी वजह से भी होता है। ये जब अल्टरेशन इनकी होती है किसी भी वजह से, अगर वेंट्रिकुलाटमी ज्यादा करते हैं, पहले जो अभी तो कम होती है, पहले ज्यादा वेंट्रिकुलाटमी ज्यादा करते थे, उससे हो सकता है। इरिथमिया से हो सकते हैं जिसमें एवी सिंक्रोनी नहीं होती, कार्डियक टेम्पोनाट से हो सकता है और रेजिडुअल कार्डियक लीजन जो है वो भी लो कार्डियक आउटपुट। तो लो कार्डियक आउटपुट की मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जब जाते हैं तो उसको करना चाहिए। तो कार्डियक आउटपुट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो उसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाएं, वो हम आप स्पोर्ट्स से, प्रेशर से, जिस तरह डोपामिन एपिनेफ्रीन वगैरह उसको उसकी बढ़ा के उसको कर सकते हैं। उसका प्री लोड उसको ऑप्टिमाइज रखते हैं, उसका आफ्टर लोड जो है उसको डिक्रीज करते हैं। आफ्टर लोड डिक्रीज करने के लिए मिलिनान, नाइट्रोक्लोराइड वगैरह ये होती है। इसलिए प्रोफिलैक्टिक यूज ऑफ मिलिनान आफ्टर कार्डियक सर्जरी जो है लोग बहुत
रिकमेंड करते हैं। फिर इंश्योर करते हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम और एट्रियोवेंट्रिकुलर सिंक्रोनी हो। फिर हम करते हैं कि उनको ट्रांसफ्यूज करके ऑक्सीजन कंटेंट उनके बढ़ा दी जाए, जो इस तरह पहले मैंने डिस्कस किया है पीछे। फिर ये है कि उसकी कंजम्पशन कम करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, सेडेशन, वेंटिलेशन रूल आउट करते हैं रेजिडुअल स्ट्रक्चर को डिजीज तो नहीं है। ओपन चेस्ट और एट्रियल कम्युनिकेशन एंड फेनेस्ट्रेशन, बाद में ये फिजियोलॉजिकल टेम्पनार्ड्स होते हैं, उसको ओपन चेस्ट कर देते हैं, उससे वो बेहतर हो जाते हैं। कम्युनिकेशंस को बेहतर कर देते हैं। मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट जो है वो लास्ट आंसर है। अगर किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर जाता तो फिर एक्स्ट्रा कार्पोरियर मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज थर्मो रेगुलेशन जो है, ये भी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपकी मैनेजमेंट में। हम करते हैं पेशेंट को तो वेज़ोडाइलेटेशन होती है, उसका जो है प्री लोड बढ़ाना पड़ता है, और क्योंकि नहीं तो टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है और लो आउटपुट की तरफ जाता है कि प्री लोड उसका वेज़ोडाइलेटेशन की उसके क्या होते हैं कि ये एक तो मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ा देता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन और जो है न्यूरोलॉजिकल इंजरीज को भी बढ़ा, ये सब है। फिर जो रेजिडुअल एनाटॉमिकल लीजन्स वाले होते हैं, तो उनको कैसे आप देखते हैं, आप उनकी एको का देख सकते हैं, कैथ करके देख सकते हैं, और उनको आपने एड्रेस करें, क्योंकि पोस्ट ऑफ एनाटॉमी जो है वो ठीक रहेगी, ये रेजिडुअल लीजन नहीं रहेंगे तो फिर आउटकम जो है अच्छे। तो रेजिडुअल लीजन आफ्टर कार्डियक सर्जरी क्या हो सकते हैं मैनिफेस्टेशन के? लीजन स्पेसिफिक होती हैं, लो कार्डियक आउटपुट, हार्ट फेलियर होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, एसाइटिस हो जाती है, अरिथमियाज हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन हो सकती है। इनकी मैनेजमेंट अर्ली डायग्नोसिस, एकोकार्डियोग्राफी से, कार्डियक कैथेटराइजेशन से, अर्ली रीइंटरवेंशन और कैथेटराइजेशन इंटरवेंशन या सर्जरी, ये है, इससे मिनिमाइज करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रेजिडुअल लीजन, और इससे जो है आउटकम जो बेहतर हो जाता है। फिर इम्पोर्टेंट चीज जो आईसीयू में है वो है इरिथमियाज है। तो मैं शॉर्टली थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है। कि इरिथमियाज के 25% ऑफ द पेशेंट ऑफ बाईपास इरिथमियाज होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि जी वॉल्यूम ओवरलोड की वजह है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, मायोकार्डियल इस्कीमिया है, वेंट्रिकुलोटमी हो गई है, उसकी मल्टीपल फ्यूचर लाइंस हैं, सर्जिकल ट्रामा है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस वगैरह, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। डायग्नोस्टिक डाटा, ईसीजी एंड एट्रियल वायर ट्रेसिंग। एट्रियल वायर ट्रेसिंग से आप खास करके जेक्शनल एक्टोपिक टैकीकार्डिया, ये भी कॉमन आईसीयू में देखा जाता है, उसमें जो है पी वेव जो है आगे फॉल करती हैं, जाहिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्यूआरएस कम्प्लेक्स से आगे फॉल करती हैं। इसका डायग्नोस्टिक है, इसका हार्ट रेट 170 से ज्यादा हो जाता है, अब्रप्ट इनका ऑनसेट होता है। ये तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए एरिथमियाज के लिए क्या होता है कि मेडिकेशन आप दे सकते हैं, मेंटेन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट उनके, स्पेशली पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। आप ये जो खास करके जेट वाले या ऐसे हैं जिनको टेम्परेचर से बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो इनका टेम्परेचर 34-35 डिग्री तक लेके आते हैं, और जो कार्डियक ओवर पेसिंग भी कर सकते हैं या ब्रेडी इरिथमियाज हैं तो उनको कार्डियक पेसिंग करके इनको करेक्ट करते हैं। इरिथमिया की असेसमेंट ये होती है कि पेशेंट क्या अनस्टेबल है, हीमोडायनेमिक उसके कैसे हैं, एसिडोसिस है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके कैसे हैं, फीवर है नहीं है, एजिटेशन, ये सारी चीजें आपने पेशेंट से देखनी है। और रिदम डायग्नोसिस ऑफ रेट फास्ट है, स्लो है, अब्रप्ट ऑनसेट है, ईसीजी उसमें देख सकते हैं सारा कुछ कि नैरो कम्प्लेक्स है, ब्रॉड कम्प्लेक्स है, क्यूआरएस के ड्यूरेशन, पी वेव एक्सेस एंड क्यूआरएस बेसलाइन है, एट्रियल वायर वायर ट्रेसिंग, जिस तरह हम जिस जेट वायर को डायग्नोस करते हैं। तो जो री एंट्रेंट होते हैं या ऑटोमेटिक होते हैं ये एरिथमिया, अब्रप्ट ऑनसेट होता है, रेगुलर रेट होता है, अब्रप्ट टर्मिनेशन विद वेगल स्टिमुलेशन होता है, अब्रप्ट टर्मिनेशन विद कार्डिवर्जन होता है, जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, AVNRT और एट्रियल फ्लटर।
और जो होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं वो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, उनका वेरिएबल रेट होता है, माइल्ड स्लोइंग विद वेगल स्टिमुलेशन, नो टर्मिनेशन विद कार्डियोवर्जन और ओवरड्राइव बर्स्ट पेसिंग, एक्टोपिक एट्रियल टैकिकार्डिया और जंक्शन एक्टोपिक टैकिकार्डिया। वो जिस तरह मैंने बताया था कि इसको फिर डायग्नोज करते हैं कि पी वेव अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आगे फॉल कर भी है तो ये होता है। और इनका ये होता है कि हार्ट रेट मोर देन 170 होता है और एवी डिसोसिएशन होती है। इनकी मैनेजमेंट एक टिपिकल मैनेजमेंट है कि आप पेशेंट को सेडेट करें, उसको डेफिनेटलीन की सेडेशन इन्फ्यूजन चला दें, उसको पैरालाइज करें, उसके इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करें, उसकी एट्रियल पेसिंग अबव जेट से उसके रेट से ज्यादा ओवरड्राइव पेसिंग करें, उसका टेम्परेचर जो है उसको 35 तक लेके आए और अगर इन सारी चीजों को नहीं रिस्पॉन्ड करा वो एमेड्रॉन इन्फ्यूजन को फिर रिस्पॉन्ड कर दे। ये दिखाया गया कि पेसिंग वायर्स जो है हमारी जो है कि जो एट्रियल है वो किस पोजीशन पे होती हैं, वेंट्रिकुलर किस पोजीशन पे होती हैं। ये टेम्परेरी पेस मेकर है जो आप सब ने जो आईसीयू में काम करते हैं, ये ड्यूल चैम्बर पेस मेकर है, इन्होंने देखा होगा। इसको लगा के तो हम जो है ब्रेडी एरिथमियास को ट्रीट करते हैं उनका, खास करके ये जो वीएसडी के पेशेंट हैं जिनका पाथ उधर से गुजरता है, सर्जरी का जो पैच लगाते हैं इधर सम टाइम जो है वो डैमेज हो जाते हैं और इनको हार्ट ब्लॉक में चले जाते हैं। इनके हार्ट ब्लॉक को पहले तो ये है कि हम वेट करते हैं, इनको स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, बाद में इन्फ्लेमेशन की वजह से ये ब्लॉक में चले जाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। नहीं तो 8 to 6 वीक इनको वेट करते हैं, अगर फिर भी रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर परमानेंट पेस मेकर की तैयारी करते हैं कि वो उसमें डाल दें। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक वीएसडी विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये केसेस जो है इनसे कनेक्टेड चीज है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। हम जो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाला केस होता है हम उसकी मैनेजमेंट फ्रॉम द ओआर ऑपरेशन थिएटर से करते हैं और आगे फिर उसको चलाते हैं। जिस तरह की उनको पहले जब जो ही हम उसको इंड्यूस करते हैं, उसको एनेस्थीसिया देते हैं, एनजी से हम 3 मिलीग्राम पर केजी उसको सिल्डेनाफिल दे देते हैं, फिर हम उसकी इसी एनजी से आगे पोस्ट ऑपरेटिवली कंटिन्यू रखते हैं। ये 0.5 से लेके 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक 6 साल ही देते हैं। साथ ही हम बाईपास के दौरान हम उसको जो है एमेड्रॉन मिलिनान लोड करते हैं, फिर उसको देते हैं, 0.75 मिनट तक लेके जाते हैं। उसके डायलेटर को काउंट करने के लिए डोपामाइन या नॉरएपिनेफ्रिन भी साथ रखते हैं और एवेल्युएट करते हैं सिस्टेमिक प्रेशर और पीए प्रेशर। जब पीए प्रेशर इसके सिस्टेमिक प्रेशर के हाफ तक आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि ये मैनेज हो गया। इन पेशेंट को अमूमन हम जो है कि जो जिनका पीवीआर जो है ज्यादा होता है और इनको फिर हम 24 आवर्स वेंटिलेट करते हैं और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हाइपोक्सीमिया को बचाएं। हाइपोवेंटिलेशन यानी इनके लिए जो है PCO2 और एसिडोसिस जो है वो डेंजरस चीज है, वो पीवीआर को और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को बढ़ाता है, उसको अवॉइड करें। और हाइपरकार्पिया नहीं होना चाहिए, 30-35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाइपोथर्मिया नहीं होना चाहिए और अल्फा एड्रेनर्जिक आइनोट्रोप भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस और पेन से बचाना चाहिए। जब भी उसकी सेक्शन करें जो भी करें तो उससे वो ट्रिगर करता है और वो ज्यादा हो जाता है। इस तरह पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्राइसिस ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इन पेशेंट में बाद हो जाती है अगर उसको आपने सेक्शन की, उसको सेडेट प्रॉपर नहीं किया, पैरालाइज नहीं किया, इरिटेशन से हो जाती है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्राइसिस बेसिकली होता क्या है, इसमें पीए प्रेशर जो है वो सिस्टमिक प्रेशर से बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट उसकी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका आपने फौरन ही इसकी एक तो वेंटिलेशन ऑप्टिमाइज करें, 100% ऑक्सीजन पे ले आए, उसको हाइपर वेंटिलेट करें, उसको सेडेट करें, उसको एनाल्जेसिया दें, उसको पैरालाइज करें। और इसमें एडवाइजेबल होता है कि इसको अल्कोलॉटिक साइड पे रखें ये एबीजीज को, अगर आपको सोडा बाइकार्ब भी देना पड़े वो भी दें और इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड वो भी इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये हमारे पास होती थी, हमने काफी यूज की है वेंटिलेटर्स पे अपने उधर और उसके अच्छे रिजल्ट होते थे।
एक्सक्यूज मी तो सर, ये जो पेशेंट होते हैं इनको ट्रीट करने के लिए जो जी एक्चुअली माजरत मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले हम जरा अगर थोड़े से क्वेश्चंस एड्रेस कर लें। ये बस 5 मिनट्स जवाब रहेंगे, मैं क्या इसको फिर इकट्ठी ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यही ऐसी जो नर्सिंग एंड फिजिकल थेरेपी और चेस्ट केयर के लिए स्पेशल हमारे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये बच्चों को वेंटिलेटर से मैनेजमेंट पे, उनकी ट्यूब की सेक्शन, उनकी वेंटिलेटर की मैनेजमेंट, उनके बाद में उसको जो है कि जी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और चेस्ट फिजियोथेरेपी कराना और उनको वॉकशॉप कराना ताकि उनकी लंग्स की केयर अच्छी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे कुलीग्स हमारी टीम का हिस्सा होता है और वो कराते हैं। और फिर इसी तरह हम उनको प्रोग्राम बना के दे देते हैं कि न्यूबलाइजेशन की अभी नॉर्मल लाइन से करानी है, टू अर्ली करानी है, इन ड्रग से करानी है, ग्रुप है तो कैसे आपने ट्रीट करना है, आपने पेशेंट को प्रॉपर रखना है बेड पे, और बाकी जो नर्सिंग होती है वुंड केयर इन आईसीयू उसका कैसे आपने करना है, और चेस्ट ट्यूब की सेक्शनिंग की कैथेटर अलग स्टेरलाइज होना चाहिए, उसका साइज जो है is inner diameter of the tube multiplied by 2 से कम होना चाहिए, 5 की ट्यूब है तो 10 से कम होना चाहिए। अब नीचे 100% पहले ऑक्सीजन दें, और कोई हाइपरटेंशन है तो उसको पहले सेडेट पैरालाइज कर लें। अब जब नीचे जा रहे होते हैं सक्शन के लिए ट्यूब में, तो आपने सक्शन नहीं करनी, आप 15 सेकंड से ज्यादा उसको नहीं रखना सक्शन कैथेटर के अंदर, और साथ साथ आपने फिजियो करनी है और उसकी स्क्रीशन वगैरह को मोबिलाइज करके निकालना है। अभी आ जाते हैं हम, इसका लास्ट सेगमेंट जो है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेरेंट्स। हमें सब पता है, हम सारे पेरेंट्स हैं, कि कितनी अटैचमेंट होती है अपने बच्चों के साथ। जब वो तकलीफ में होते हैं तो माँ बाप को और मदर्स को खास करके कितनी तकलीफ होती है। इसके लिए हमने ये कोशिश की होती है, बनाया होता है कि उनको हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल बताई हुई है, लिख के बताई हुई है कि मदर जो है वो विजिट कर सकती है, उसने कैसे विजिट करना है, सुबह कैसे बाथ लेके आना है, उसने फीड कैसे कराना है, उसने आईसीयू में दाखिल कैसे होना है, किस तरह उसने ग्लव्स और गाउन और शू कवर लेके फिर उधर उसने जो ड्यूटी स्टाफ है उसकी कैसे इंस्ट्रक्शन सुननी है, वो क्या बता रही है उसे कैसे करना है, और पेशेंट और बच्चे भी उन पर डिपेंडेंट होते हैं तो उनके कितने फासले पे आपने बैठना है, कैसे आपने उनको हैंडल करना है, ये सारी चीजें जो है करनी है। फिर हम ये एक सेशन रखते हैं, जब ग्रैंड राउंड हो जाता है तो बाहर हमारा काउंसलिंग रूम है जिसमें आप उनको बिठा के उनको प्रॉपर पेरेंट्स को उसकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है हो रही हैं या उसकी कंडीशन है उसको पूरा समझाते हैं, बताते हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बहुत ध्यान से सुने क्योंकि पेशेंट की कंडीशन किस तरफ जा रही है और कैसे हम उनको हेल्प कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने शिफा देनी होती है लेकिन इंसान ने मेहनत करनी होती है कि कैसे करें। और उनसे अगर ये कोऑपरेट करेंगे, इनका अच्छा कोऑपरेशन रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, तो रिजल्ट आउटकम अच्छे होते हैं। फिर तो पोस्ट डिस्चार्ज केयर के लिए भी हम जब डिस्चार्ज करते हैं उनको बता के भेजते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो एक हफ्ता अगर बाहर से आएंगे तो उसी स्टेशन पे रहें, फिर एक हफ्ते के बाद आके दिखाएं। आप हफ्ते के बाद एक वो जो है एकोकार्डियोग्राफी कराएं, उनके लिए इंजन देखते हैं, उनकी मेडिकेशन जो उसको के लिए प्रॉपर होने, जो चीज समझ नहीं आती उसको समझें, ये देनी है, वो सारा कुछ उनको पता होना चाहिए कि ये उनको मेडिकेशन हमने इस तरह देनी है, टाइमिंग का ख्याल रखना है, उनकी हाइजीन का क्या। हमारा ये है कि हम जब जाते हैं इधर से डिस्चार्ज होके जाते हैं तो घरों में लोग जो हैं बहुत वो रश कर देते हैं, उनको बहुत मिलने या प्यार करने की कोशिश करते हैं। ये है तो मोहब्बत, लेकिन ये उनके साथ हम कहते हैं कि एक किस्म की दुश्मनी भी है कि इन्फेक्शन अगर हो जाए तो बड़ी डेंजरस होती है। घर में भी बच्चों का ख्याल रखें, उनको देखें कि किसी को टेम्परेचर हो रहा है, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसको कोई पाँव सूज रहे हैं, उसके कोई सांस फूल रहा है, तो ये सारा फौरन नोट करके अगर उस जगह पे नहीं है जिधर कार्डियक सेंटर है, कम से कम डॉक्टर को दिखाएं और फिर आप मशवरा करें। वैसे जो हमारी रूटीन है कि 2 हफ्ते के बाद विजिट, फिर महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, और उनको एडवाइस करते हैं कि रूटीन की नॉर्मल जो डाइट है वो खाएं, बल्कि हाई कैलोरिक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट खाएं ताकि उनका अच्छा सेहत बेहतर हो, इम्यूनिटी बढ़े, सारा कुछ। और ये है कि एक्टिविटी नॉर्मल करें, रूटीन की, बेड रेस्ट वगैरह नहीं देते लेकिन रूटीन की, बहुत ज्यादा अपने आप को थकाए नहीं। और उनको बात साथ जो देने हैं तो उसको प्रॉपर जो उस वुंड पे पायोडीन लगा के उसको
उनको पर जो इंस्ट्रक्शन दी होती है सारी उनको सुन के और उसको करना चाहिए। तो आजकल चूंकि थोड़ा सा, आई एम सॉरी, आई टेक 2-3 मिनट्स, कोविड का जमाना है, तो हम आजकल हमारे क्या प्रोटोकॉल है। कोविड वाले जो पेशेंट आते हैं, हमारा जो पेशेंट जो भी आता है, हम उससे एक टेस्ट पहले कराते हैं आने से पहले, एक फिर हॉस्पिटल में आ जाता है उधर कराते हैं, तो डबल नेगेटिव जब होता है उसको ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है आजकल। फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जो इमरजेंसी हमें ऑपरेशन करना है जिसका हम वेट नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको ये करते हैं कि उसका टेस्ट भेज के उसका इमरजेंसी ऑपरेशन कर लेते हैं, और वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, पीपी सारे जो उनका ड्रेस पहनना, उनकी सारे हाइजीन, और जो इंटुबेशन कर रहा है उसकी पूरी शील्ड और अपनी प्रोटेक्शन सारा कुछ करके करते हैं, और उसको ऐसे एरिया में रखते हैं कि जब तक वो उसका क्लियर टेस्ट नेगेटिव नहीं आता उसको फिर हम प्रॉपर आईसीयू में नहीं, एचडीयू या कि अलग उसका पोर्शन बनाते हैं, उसको रखते हैं। और कोविड की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं, इनमें मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है, जिसको कोविड ओ पॉजिटिव ये देखना होता है। जो कोविड वाले पेशेंट हैं उनमें जो हमने जो इधर हमारा एक्सपीरियंस है ट्रीट किए हैं, उनको मॉडरेट सी अगर डिजीज जब हो जाती है तो हम उनको स्टीरॉइड शुरू करा देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस में वेंटिलेट करने से ज्यादा जो फायदा हुआ है वो सीपैप और हाई फ्लो जो सिस्टम है ऑक्सीजन के, उनसे हुआ है। एंटीवायरल ड्रग्स कब देनी है, 10 दिन से पहले पहले आपने देनी है, रेमडेसिविर जो देते हैं आप, उनको एंटीकोगुलेंट देनी है, क्योंकि इनमें कोगुलेबिलिटी, यहाँ पर कोगुलेबिलिटी होती है कि स्ट्रोक होते हैं। और इनको हम क्लैक्सिन दे सकते हैं, इनको हम एनॉक्सिप्रिन वगैरह सारा जो भी आपकी प्रोटोकॉल है वो दे सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में इनका इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना कि एडल्ट लोग। एट द एंड जो है मैं समराइज करता हूँ कि जो इंटरडिसिप्लिनरी साइन आउट ये एक क्रूशल चीज है, क्योंकि इस पे हम जो है बेस बनाते हैं। इसमें हम सारा पूरा उसका ऑपरेशन का बता के उसके जो इंसिडेंस पर ऑपरेटिव हुई है वो बता के उसकी एनाटॉमी क्या है और एक प्लान बना के देते हैं। फिर उस पर हम जनरल प्रिंसिपल जो मैंने बताए थे वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको जो मॉनिटर करते हैं, फिर उस मॉनिटर के फायदे क्या हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और कैसे वो हमें हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में, उसको देखते हैं। वो देख के फिर आगे हम कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं और कॉम्प्लिकेशन को कैसे हमने अपने जो प्रोफेशनल स्किल से पिक करना है और कैसे प्रॉम्प्टली एक्ट करना है ताकि जो है कि उसकी मॉर्टेलिटी बढ़े ना, वो जरूरी है। फिर जो है कि पेरेंट्स का उनको ब्रीफ करना, उनको अपडेट रखना, ये भी बहुत जरूरी है, आईसीयू का काम है। और पेरेंट का भी बहुत ये जरूरी इंपॉर्टेंट काम है कि इन चीजों को समझे, इन पे प्रॉपर्ली जो है अमल करें और डॉक्टर से और स्टाफ से पूरा कोऑपरेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड आपका लेक्चर था। तो अब हम विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सर, आपके जो सेक्शन था इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग का, उसमें डॉक्टर किरण बतूल पूछ रही हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैथेटर पोजीशन एंड हाउ विल इट चेंज द मिक्स्ड वीनस रीडिंग्स? ठीक है, इसमें जो होता है कि कैथेटर जो है, आप फर्ज किया कि आप ले लेते हैं, आप पीए लाइन की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, या उसका एलए का कैथेटर या आरजी का कैथेटर। ये जो कैथेटर अगर कॉर्नरी साइनस के करीब हो, पोजीशन उसकी हो, तो वो उसका ये होता है कि उधर वो उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन उतनी अच्छी नहीं आती। जिस तरह वो कहते हैं कि आरए का कैथेटर अगर आप इंफीरियर वेना केवा में रीनल वेन्स के करीब चला जाए वो उधर थोड़ी सी वो हायर साइड पे आती है, पोजीशन का ये। वैसे हम देखते हैं कि जिस तरह सीवी लाइन है, सीवी लाइन में आप देखते हैं कि सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के जंक्शन पे उसको होना चाहिए। मतलब ये होता है कि नीचे आ जाता है और ये फिर डिसरिथमियास क्रिएट करता है, इंजरी कर सकता है, वेल्व को टच कर सकता है। तो ये इनका अपनी जगह पे रहना जरूरी है कि उससे आप जो है कि डैमेज ना करें बल्कि उससे फायदा उठाएं।
इसी तरह पीए जो कैथेटर है उसका ये है कि वो अच्छा उसके रिजल्ट होते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी में होता है जितना डिस्टल पोर्शन पे होता है, सिवाय इसके कि कहीं ऐसा ना हो कि जी राइट टू लेफ्ट शंट हो रहे हैं तो फिर उसकी कंपोजिशन है या उसके रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है, या लेफ्ट टू राइट है तो उसकी ऑक्सीजनेशन बेहतर आ जाएगी, राइट टू लेफ्ट है तो उसकी कम, तो आपकी फिर मिस गाइडिंग रीडिंग आती है। बाकी एक बता दिए कि जी जिस तरह एलए के जो हैं सेचुरेशन 100% होनी चाहिए, अगर वो कम आ रही है तो इसका मतलब है राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। इसी तरह जो है कि जो पीए की जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो 75 तक होती है, जब 80 पे होती है तो हम उसमें क्या होता है हम वरीड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन है। हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन किन कंडीशन में हो सकती है? सेप्सिस में, मतलब है कि पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है तो उसको ये, क्योंकि जब ब्लड ज्यादा तेजी से गर्दिश करता है टिश्यू को टाइम नहीं मिलता ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने का, तो वो ज्यादा होती है, तो उसमें खुश होने वाली बात नहीं होती बल्कि हम वरीड हो जाते हैं कि ये इसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। थैंक यू सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी नर्सिंग स्टाफ से एक क्वेश्चन आया है कि अगर पेशेंट के वाइटल साइंस जो हैं वो स्टेबल हैं तो फिर कितने ड्यूरेशन या पीरियड के बाद हम उनका मतलब फुल इवैल्यूएशन या जो आपने ये एक पूरा एक स्ट्रीम बताया इवैल्यूएशन का, कितनी ड्यूरेशन के बाद हम इसको कैरी आउट करें? इसके जिस तरह पहले मैंने बताया कि जब हम पेशेंट आता है उसमें 2 नर्सिंग स्टाफ होती है ड्यूटी पे होती हैं। एक ही हम ड्यूटी लगा देते हैं कि जो पेशेंट को संभाल लेती है, उसके वाइटल साइन सारी चीजें बेस लाइन वो लेना शुरू करती है। दूसरी जो होती है वो करती है कि जी हमारा जो इंटरडिसिप्लिनरी साइन आउट है जिसमें ये कि एनेस्थेटिस्ट और कार्डियक सर्जन आके बताता है कि ये पेशेंट प्री आप ऐसा था, हमने ऑपरेशन किया ऐसा रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन के दौरान, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई या कोई और प्रॉब्लम्स हुई, जो भी वो एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि अब इसकी एनाटॉमी ये है, इसकी सर्कुलेशन ये है और हमने इसको देखना है। तो ये सारा जो सारी इन्वेसिव मॉनिटरिंग है इस पे टाइम ज्यादा लगता है और इसमें तकरीबन घंटा लग जाता है। हमने इसको 1 घंटे का पीरियड दिया हुआ है। जो आप बेसलाइन मॉनिटर करते हैं वो तो आप फौरन लगा लेते हैं, जब वो आते हैं तो पहले ही मॉनिटर्स पे आते हैं, हो रही होती हैं, या तो उसी को रख लेते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं, या ये है कि दूसरे मॉनिटर पे शिफ्ट कर देते हैं, तो उस पर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हम ट्रेंड्स जो डिजीज के ट्रेंड्स देखते हैं वैसे देखते हैं कि जी आर्ली हम देखते हैं, आर्ली एक आर के बाद कैसे जा रहा है, किधर उसका ट्रेंड जा रहा है। कि जी अगर अच्छाई की तरफ जा रहा है तो हम खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम फौरन उस पर एक्ट करते हैं ताकि इन चीजों को हम मैनेज करके और हम उसको पेशेंट को हेल्प कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन है कि आपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस हाईलाइट की थी, फॉर एग्जांपल लो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक टेम्पोनाट, अरिथमियास, तो इनमें से कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट को हाई रिस्क प्रोफाइल में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनको ज्यादा अटेंशन की या ज्यादा केयर की जरूरत होती है फ्रॉम एन इंटेंसिविस्ट? जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है टेम्पोनाट को अर्ली पिक करना। आपको जो ही साइन शुरू होते हैं कि उसके यूरिन आउटपुट कम हो गया, उसके जो है कि सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ने शुरू हो गया, उसकी ड्रेन में आ रहा था बड़ा अच्छा, आप उसके सारा मैनेज भी कर रहे हैं, मिल्किंग कर रहे हैं, सब कुछ ड्रेन में आना सडन बंद हो गया है और उसके ब्लड प्रेशर जो है ड्रॉप होने शुरू हो जाए, तो ये एक जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें यह है कि इसमें तो फौरन आपने एक्ट करना है। इवन के फिजियोलॉजिकल भी अगर टेम्पोनाट हो रहा हो तो उसमें फौरन के आप जब चेस्ट को ओपन करेंगे तो पेशेंट बिल्कुल जो है वो उसके प्रेशर वगैरह सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी और उसको आप उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। अगर ये डिलेड हो जाए फिर उसका किडनी पे भी इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाकी चीजें भी, और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग मतलब उसकी लाइफ को थ्रेट भी हो सकता है। और जो बाकी है ब्लीडिंग है उस पर आपको टाइम मिल सकता है, वो आप देखते हैं वो ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं। अगर वो 3 ml पर केजी बॉडी वेट है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सर्जिकल ब्लीडिंग नहीं है बल्कि ये जो कोagulation फैक्टर और ये प्लेटलेट्स डिसफंक्शन और इनकी वजह से है। हम पहले उनको करेक्ट करते हैं और उनकी करेक्शन से फिर देखते हैं। लेकिन इसमें एक
जो चीज है वो जरूरी है कि अगर उसकी ब्लीडिंग जो है 10 ml पर kg पर आवर से बढ़ गई है, तो आपको फौरन सर्जन को कॉल करना चाहिए कि वो फिर नथिंग एल्स बट इट इज सर्जिकल ब्लीडिंग। तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्जन को कि इसको ओपन करके तो इसको करें। ठीक है, थैंक यू सर। अब एक पेरेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप जो है मदर को अलाउ करते हैं इन द आईसीयू, क्योंकि उमूमन ये पाकिस्तान में जो है कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यूएसए में इट इज़ अ ट्रेंड फॉर फास्ट रिकवरी। तो इसके बारे में अगर आप थोड़े अपना हाईलाइट कर दे ओपिनियंस प्लीज। सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन कि मदर को हम बुलाते हैं तो इससे रिकवरी पे क्या असर पड़ता है? हाँ जी, वो जल्दी होती है। वाकई में ऐसे होता है क्योंकि यूएस में ये एक ट्रेंड है कि पेरेंट्स को आईसीयू में आने देते हैं, तो उससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। तो अगर पाकिस्तान में इसको हम ज्यादा मतलब इनकॉर्पोरेट करें आईसीयूज में, तो इससे पेशेंट के आउटकम पे या रिकवरी पे टाइम जो है वो कम होगा, बेहतर होगी रिकवरी। डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता है। एक तो ये है कि हम पहले तो ये है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रोटोकॉल हमारी बनी है हमने, बल्कि जिस इंस्टीट्यूट में पहले मैं था तो उसमें हमने बिल्कुल अपनी आईसीयू के साथ एक हॉल बनाया हुआ था जिसमें सारी मदर जिनके बच्चों के ऑपरेशन हुए थे वो उधर रहती थी। उनको एजुकेट करते थे, उनको खाना वाना उधर ही देते थे कि ज्यादा बाहर दूर छूट ना जाए। उनको बता के कि सुबह आपने बाथ लेना है, आपने जाना है, रात को जाना है, जिस टाइम बुलाएं आपको, क्योंकि बच्चा जब डिस्टर्ब होता है तो वो माँ को याद करते हैं। हम देखते थे कि जो ही मदर आती थी और उनकी कंडीशन और आप उनके वाइटल साइन, उनका हार्ट रेट, उनका सारी चीजें, क्योंकि वो रो रहा होता था, डिस्टर्ब होता था, तो ये चीजें डैमेज करती हैं और ये शायद मिजरी को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, बीमारी को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। लेकिन वो जब आते थे तो वो खुश हो जाते थे। इवन कि हमने प्रोटोकॉल बनाई थी कि सेकंड डे पे हम उनकी गोद में देना शुरू कर देते थे, ये हैंडल करें, उनकी वार्मथ मिले उनको, और इससे बहुत ही फर्क पड़ा मदर पे भी, पेरेंट्स पे भी और पेशेंट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जो है उनको देख के उनकी जो थैंक यू। रोना खत्म हो जाना, उनके जो साइड जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बैड इफेक्ट है वो खत्म हो जाते हैं और उनकी रिकवरी जल्दी होती है। थैंक यू सर, आपने सारे क्वेश्चंस बहुत एडुकेटली और बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि आपकी स्लाइड्स अगर अवेलेबल हो जाएं तो इंशाल्लाह वी विल मेक इट अवेलेबल इन द पीडीएफ फॉर्म फ्रॉम पीसीएचएफ। तो बिफोर कंक्लूडिंग कमेंट्स मैं अब मिस्टर फरहान अहमद को दावत देना चाहूंगी कि वो कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स शेयर करें हमारे साथ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर समद, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन में आपने वक्त दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल, ऑनर्ड कि आप हमारी फाउंडेशन को इतना सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आपको तो मालूम है सर पोस्ट आईसीक्यू कितना क्रिटिकल है, और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बड़ा ज़रूरी है कि हम इनको एजुकेट करें। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली टाइम की किल्लत की वजह से नहीं पूछ सके। तो मेरी ये राय होगी सर कि हम एक सेशन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का आपके साथ रखते हैं फ्यूचर में। थोड़ा टाइम आप और निकाल दीजिएगा, जिसमें हमारा मकसद होगा कि मतलब बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन करें, पेरेंट्स के लाइव क्वेश्चन लें, उनके कंसर्न पूछें। और बाकी जैसे आपको पता सर हमारा मेन फोकस है बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल, उसकी तामीर भी शुरू हो चुकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ की एक सर्जरी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, कोविड की वजह से इश्यूज हैं, लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम, फॉर अदर सीएचडी कम्युनिटी, स्पेशली सर जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, जो पोस्ट आईसीयू केयर का स्टाफ है, प्री आईसीयू केयर का स्टाफ है। वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको ना पर्सनलाइज लेकर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, रियली रियली ऑनर्ड फॉर योर टाइम। वेलकम सर, आई एम ऑनर्ड। और बिल्कुल जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। आप बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत ही एक ऐसी खिदमत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में, और ये बहुत डेफिशिएंसी चीज की अवेयरनेस
आपको पता ही है कि पहले जो हमारे जो होते थे बच्चे वो लेट हो जाते थे, लेट फॉर ऑपरेशन, कि जी VSD का है, उसकी इतनी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई कि अभी वो ऑपरेबल ही नहीं रहा, आर्टेरियल स्विच है तो उसको हमने करना है, तो उस पीरियड से निकल के उन्होंने रिपोर्ट की। और ये सारी आप लोगों की मेहरबानी और आप लोगों की कोशिशों की वजह से अब बहुत सारी अवेयरनेस होगी। अब तो मैं देखता हूँ कि जो मिलने आते हैं तो एनेस्थीसिया से लेके सारे वो क्वेश्चन करते हैं ऐसे जैसे उन्होंने इसका पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी आपकी एफर्ट है, बड़ी खुशी हुई। और सेकंड जो आप कह रहे हैं कि स्लाइड बिल्कुल आप मेरी शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और थर्ड चीज जो मैं कि मैंने इनको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है, थोड़ा सा टाइम रह गया। ये जितना जो लेक्चर है ये आपको उर्दू में भी इंशाल्लाह एक बुकलेट या उसकी फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप लोगों में, पेरेंट्स में आप शेयर कर सकते। और माशाल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आप हॉस्पिटल बना रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, आपको हिम्मत दे, और आप जो है एक काम करते रहें। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी चांस टू हैव लिटिल बिट ऑफ शेयर। और जब भी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी, thank you very much, General Iftikhar, Mr. Farhan Ahmed, to all our panelists, our attendees. Thank you for attending our webinar. Inshallah, we hope to see you again in our next session. Allah Hafiz.